मैं अभी प्रिंसिपल मैडम के जा रहा हूँ। कह रहा था एक मीटिंग चल रही है उस पे, क्या नाम है, टीम पे, तो थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगा। मेरा वो आपको नहीं। ये है हमारा नहीं ठीक। जो एक सामने भी है उसमें तुम्हें उनको क्या बोलोगे, मना कर दूं या जाऊं? मना कर। Ma'am, shall we start? हाँ हाँ बिल्कुल। I request everyone to mute yourself. A very good morning to all of you. Myself, Dr. Poonam Verma, Assistant Professor and President of IIC at Netaji Subhash Chandra Bose Government Girls PG College, Aliganj, Lucknow. Welcome you all in today's Impact Lecture session sponsored by Ministry of Education Innovation Cell, MIC, and All India Council for Technical Education, AICTE, New Delhi. Promoting innovation and startup will ensure an unprecedented wave of long deserved growth, prosperity, and well being that can serve the interest of the rest of the world as well as the spirit of New India. And knowledge of intellectual property rights is a prerequisite in this path. Our today's Impact Lecture Session 2 is based on similar theme intellectual property rights which will prepare you for the future with respect to your ideas and innovation regarding IPR related issues. Netaji Subhash Chandra Bose Government College, affiliated with Lucknow University, is one of the leading institutions under the aegis of Government College in Higher Education, focused on both scholastic and non-scholastic development of students. Under the unexcelled guidance of our principal Professor Anuradha Tiwari ma'am, the college has achieved many milestones and set high records of producing meritorious students. NSCB College welcome all aspirant in today's very important session which is designed by Ministry of Education's Innovation Cell. Our today's resource person for lecture 1 is Professor Dinesh Chandra Sharma, President of IIC and Head Department of Zoology at KM Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Buddha Nagar, and also the recipient of Uttar Pradesh State Government Award Shichak Shri Samman 2015. His area of specialization are toxicology, biochemistry, and molecular biology, and his innovative specialization areas are biomusicology, music therapy, and e-education. Dr. Sharma has been teaching and doing research in government colleges of Uttar Pradesh since 2000. He is the founder chairperson of Indian Association of Music Therapy IAMT and also known for starting practical use of ICT in Government College of Uttar Pradesh and established first smart class in Government PG College of Noida in 2010.
More than 150 of his research paper articles have been published in journals, magazines, souvenir proceeding, and newspaper of national and international repute. His 4 books were published by international publishers. Dr. Sharma has organized 10 national seminar, conferences, and workshops on biomusicology and e-education. He is also known as an expert of e-education, biomusicology, and genotoxicology. His lecture and interviews are telecast on various television channels time to time. He is also honored by Shikshak Ratna Puraskar of 2013 and IAES Gold Medal of 2019. Dr. Sharma is featured in ISKCO News International magazine in 2017 for his work in music therapy. He completed 2 research projects and 1 is ongoing. We welcome you, sir, and we are very happy to have dynamic, multi-talented personality, teachers, supervisor, and innovators like you with us in this Impact Lecture session. Before moving ahead, I am very thankful to our respected principal ma'am for giving me chance to coordinate the session. I would like to invite our principal ma'am to say few words for this session. Over to you, ma'am. थैंक यू पूनम। और आज मैं ये मान के चलती हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संरचना संरक्षण एक्चुअली हम लोगों का कृतित्व क्या कितना अपना है और हम उसको अपना आगे तक बना के कैसे रख सकते हैं, ये मैं बहुत सरल शब्दों में छात्र छात्राओं के लिए कहना चाहूंगी। और इसके साथ ही इसके बारे में तो हमारी रिसोर्स पर्सन आज बताएंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आज हमारे मध्य जो रिसोर्स पर्सन है वो अपने ज्ञान, कुशलता, मेहनत और सुवीक्षण क्षमता, एक शब्द होता है कि अच्छे तरीके से जांच परख के, वीक्षण करके, देख करके और किसी भी मंतव्य या निष्कर्ष तक पहुंचने की जो एक सघन मेहनत होती है, जो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा को शिक्षक श्री बनाती है, शिक्षक रत्न देती है, गोल्ड मेडल दिलवाती है और उत्तर प्रदेश भर के बहुत सारे शिक्षकों का पथ प्रदर्शक भी बनाती है। ऐसे रिसोर्स पर्सन को मैं अपने महाविद्यालय के इस पटल से बहुत बहुत आभार भी करती हूँ, बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से स्टीयरिंग कमेटी में उनके साथ रहने के अनुभव ने मुझे उनके बारे में इतना बताया है कि जो जितना भरा पूरा होता है ज्ञान से, यहाँ मैं ज्ञानी के संदर्भ में कहूंगी, वो कितना विनीत होता है और उसके अंदर देने की जो सच में लबालब भरा होता है ज्ञान से, उसके अंदर कितनी अनंत क्षमता होती है दूसरों को गाइड करने की, बताने की, समझाने की। तो ऐसे रिसोर्स पर्सन को हम अपने प्लेटफॉर्म पर पा करके कॉलेज के साथ के सभी लोगों के साथ बहुत खुश है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। अभी तो हम इस आभासीय मंच पर आपसे मिल रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप कभी लखनऊ आए तो हम एक सेशन ऑफलाइन भी रखें आपके साथ और लोग आपके इस अनुभव से मतलब लाभ उठा सकें और उनके अंदर भी एक आग पैदा हो, एक लौ जगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या और कैसे करना है और किस तरह से डीसी शर्मा का अनुकरण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। जैसा मैम ने कहा, सर बहुत सारी कमिटीज़, स्टीयरिंग कमिटी में भी रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज़ में भी रहते हैं। वाकई में सर बहुत बिजी भी हैं और बड़ी मुश्किल से सर से कांटेक्ट हो पाया, कई बार में फ़ोन रिसीव हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का न लेते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा फॉर हिज टॉक। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को, स्पेशली प्रिंसिपल मैम को। पहले तो आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हमारे कॉलेजों में कुछ ही कॉलेज में आईएसी है
और IIC होने के बाद भी 3 स्टार एंड ऑफ रैंकिंग है, जिनको इम्पैक्ट लेक्चर का परमिशन मिली हुई है। तो ये कुछ बिरले कॉलेजों में ही शामिल है, जो आगे जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप लेके आए मैम के नेतृत्व में, इसलिए पूनम जी बधाई की पात्र हैं कि IIC और इम्पैक्ट लेक्चर चल रहा है, आप सभी लोग चल रहे हैं। दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा, हम गवर्नमेंट कॉलेज में मानता हूँ हम सभी एक परिवार हैं, कभी कोई कहीं है कभी कोई, सभी एक दूसरे के साथ कभी ना कभी काम करना ही करना है। तो हमको जो प्लेटफॉर्म देखना है, जो अपने आधारभूत संरचनाएं देखनी है, उसके हिसाब से अपनी चीजों को देखना है। मैं कई बार कहता हूँ अगर हमारा टारगेट ऑडियंस, हम बहुत बड़ी बात करते हैं लेकिन टारगेट ऑडियंस उसको इम्पैक्ट प्रैक्टिकली नहीं कर सके तो शायद वो काम नहीं आ पाती हैं। तो उसी नजरिए से मैं आज बात करूंगा। अगर हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा जो लेक्चर होगा 3 एस्पेक्ट होगा, इन्वेंशन, रिसर्च, IPR एंड इन रेफरेंस टू NEP 2020, क्योंकि NEP 2020 का सभी चीजों पर फोकस है और सारे स्टूडेंट, चाहे वो UG स्टूडेंट है चाहे PG स्टूडेंट है, सभी के लिए आगे आपको इस पर काम करना है। तो अगर हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो नेचुरल सी चीज है जो आपके कॉलेज में, हमारे और गवर्नमेंट कॉलेज में होगी। IIC जितनी अच्छी होगी उतना ही इनोवेशन IPR पे काम हो सकेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम IPR सेकेंडरी है, सबसे पहले IPR तक पहुंचने का रास्ता कहां से आए, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथी बहुत छोटे छोटे भाई अलीगढ़, लखनऊ, बहुत सी। एक और चीज बताना चाहूंगा, मैंने पूछा भी था पूनम से कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है, मुझे पता है इनका फैक्टर वर्चुअली हो रहे हैं सारे के सारे, पर बाई चांस मैं आज लखनऊ में ही हूँ। वेरी गुड सर। एक वर्कशॉप में हुआ था, तो मैंने ये होता तो मैं सोच चला जाता, तो उनसे उनका 2 बजे से था, तो मैंने इसमें कनेक्ट हो गया था। यानी ये मौका मिलेगा आने का। मैम We missed that opportunity to meet you physically. मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, Yes, मेरा sir. शेड्यूल था। But sir, it's on स्कीम कि हम लोग को ऑनलाइन ही कराना है। हाँ, ये बताया कि इम्पैक्ट Yes. लेक्चर ऑनलाइन ही होने हैं, Yes, sir, yes. इसलिए मैंने भी मेरे यहाँ भी कराए गए हैं 4। Yes, sir. तो मैं स्क्रीन शेयर अलाउड है? बड़ी गड़बड़ हो गई वैसे। Yes, sir. मेरी Yes, ध्यान sir. दी आगे में Yes. जैसा मैंने कहा कि हमें सबसे पहले इनोवेशन पर बात करनी होगी, इन्वेंशन से हटके बात करनी होगी, और ये देखना होगा कि क्या हम रिसर्च कर सकते हैं या ऐसी चीजें कर सकते हैं जो IPR की तरफ जा सकें, वो आएंगी कहां से। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी है कि हिंदुस्तान आगे लीड करे इन सब चीजों में, रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। वो कहते भी हैं कि जो हमारा युवा है वो जॉब चाहने वाला, जॉब देने वाला बने, जॉब क्रिएटर बने, और दैट कैन बी पॉसिबल बाय द रिसर्च एंड इनोवेशन, आइडियाज से। और जो आइडियाज या जो इनोवेशन होंगे, इन्वेंशन होंगे, तो इन्वेंशन बहुत बड़ी चीज है। इन्वेंशन को प्राइमरी रिसर्च में ले जाते हैं, पर इन्वेंशन भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं, इनोवेशन भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं। जितने भी हो रहे हैं, एक समस्या है उसका समाधान है। 3 एस्पेक्ट में फोकस करना है जब भी इन्वेंशन एंड इनोवेशन की बात करनी है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान न करें। दूसरे, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको हम दुनिया के सामने रखें, उसको रीइन्वेंट करें, इनोवेट करें। बीइंग ए जूलॉजिस्ट मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी तक हम स्टूडेंट से लेके आज तक की लाइफ में, बीइंग ए टीचर, हमने सदैव फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बताया, क्योंकि और दुनिया में भी यही है, सारी बुक्स में ये जेनेटिक्स के रूल सारे मेंडल ने दिए हैं। लेकिन जब मैं NEP से कनेक्ट हुआ और जब ये बात आई कि ट्रेडिशनल नॉलेज को देना है, बढ़ावा देना है, आगे लेके आना है, इंडियन साइंटिस्ट को आगे लेके देना है, उस समय मुझे चरक के बारे में जानने का थोड़ा सा मौका मिला। हमने नहीं पढ़े थे चरक, ये विडंबना ही कही, हमने कभी नहीं पढ़े उनको। तो देखा जो बात मेंडल ने कही थी उससे मिलती जुलती बात चरक उससे कितने सालों पहले कह चुके हैं। अब इसको रीइन्वेंट करना है, जो ज्वाइन करने हमको वाले वर्ल्ड बच्चे प्लेटफॉर्म पे हैं, लाना शो हो रहा है। है। और जब वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आएगा तब हम उसे IPR की तरफ आगे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। एडमिट कर दीजिए। और प्राइमरी रिसर्च की एक और दिक्कत होती है, जो भी प्राइमरी रिसर्च होती है वो IPR फ्री होती है। IPR की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं बौद्धिक संपदा, यानी IPR के बेस पे आप ये कर सकते हैं। IPR ने एक रिसर्च और इनोवेशन की आइडिया दिया जिससे कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं अपनी चीज को पेटेंट करा के। लेकिन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज से आके लेके आ रहे हैं, उनमें अब एक एग्जांपल में हल्दी का हम सभी जानते हैं,
हल्दी का, नीम का एक जमाने में पेटेंट करा लिया गया बाहर। वो ट्रेडिशनल नॉलेज थी, ट्रेडिशनल नॉलेज थी, यानी कि वो हमारे देश में बहुत छोटे छोटे गाँव में चले जाइए, वो उनको एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, सदैव से किया जा रहा था। चाहे हल्दी दूध में मिला के दी जाती थी या कहीं चोट लग गई वहां लगा दी जाती थी, ये प्रैक्टिस में थी, इन प्रैक्टिस थी। उसी चीज को वहां ले जाके उसको पेटेंट करा लिया गया। अब लॉ इतने अच्छे आईपीआर कि इंडियन नॉलेज या कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, किसी भी कंट्री की ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको आप पेटेंट फ्री रखते हैं, पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो बीइंग इंडियन हम उसको पेटेंट कैसे कराएं? पेटेंट तो नहीं करा सकते। यानी अब जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था कि दूध में हल्दी मिला के दे दी, हल्दी घाव पे लगा दी, सिंपल जो था, उसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अगर उस प्रोसीजर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वही क्या हो जाएगा? वही इनोवेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक कोट करता हूं, हम लोगों से बहुत से लोग शार्क टैंक देखते होंगे, एक सोनी का आई थिंक कार्यक्रम आता था शार्क टैंक। और जब हम आईआईसी की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट से भी कहना चाहिए कि उस प्रोग्राम को जरूर देखें। छोटे छोटे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्या था, एक आप कैसे इलिटरेट लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बेटा जरूर उनका पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो सुसाइड होती हैं, आत्महत्याएं होती हैं, उनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो पंखे से लटक के करने का है। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं उसमें। पंखा भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी रॉड जिससे पंखा छत से कनेक्ट होता है वो भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है हमारी। तो उन्होंने एक समस्या थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की कि आपके जो फैन हैं उसे सुसाइड हो रही है, तो समस्या हो गई। अब इसके सोल्यूशन ढूंढने कह सकते हैं कि उन्होंने इनोवेट किया उस समस्या को। सोल्यूशन क्या निकाला उन्होंने एक स्प्रिंग रॉड के और पंखा जब कनेक्ट होता है लगाई। इससे पहले भी एक यूके के व्यक्ति ने, एक ही देखिए इनोवेशन हो सकते हैं और दोनों के अलग अलग पेटेंट हो सकते हैं, यही काम एक यूनाइटेड किंगडम में भी किया था। उन्होंने क्या किया, उस जो रॉड थी उसको एक वेट बेस बनाया, यानी अगर एक वेट से ज्यादा वेट होता तो लेकिन इसमें चोट लगती थी, जो भी ऊपर से पंखे से लटकेगा गिरेगा तो उसके हाथ पे टूट जाएंगे, चोट लगी जाएगी। जो भारत के लोग थे, इंडियन लोग थे जिन्होंने किया ये काम, उन्होंने उसका सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने एक स्प्रिंग लगा दी वेट बेस्ड। अगर कोई पंखे से लटके की कोशिश करेगा तो जैसे उसको वजन ज्यादा पड़ेगा वो स्प्रिंग वहां से खुल जाएगी, पंखा नीचे की तरफ आ जाएगा, वो आदमी गिरेगा भी नहीं, चोट भी ज्यादा नहीं लगेगी। तो आप देखिए एक ही पैटर्न पर दो पेटेंट हैं दुनिया में, होने का मोटिव भी एक ही है, ये सुसाइड को प्रिवेंट करना, लेकिन उसका तरीका अलग है और इनका तरीका अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेटेंट कराने का मेथड है वो समस्याओं को डिफरेंट ढंग से देखना है, और समस्या को देखने के बाद जो भी सोल्यूशन निकले उसको हम पेटेंट में ले जा सकते हैं। थोड़ा सा भी माइनर सा चेंज भी करते हैं हम तो हमारा इनोवेशन हो सकता है। इनमें और जो हमारे टारगेट हैं रिसर्च के और इनोवेशन के दुनिया में, जो अमृतकाल कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और कहा है कि 2047 तक हमें टारगेट पूरे करने हैं। अगर इनोवेशन में, रिसर्च में हम देखें दुनिया से बहुत पीछे हैं। उस टैलेंट को, उन लोगों को आगे लेके आना है, और उनके जो टारगेट अलग अलग हैं, बेसिकली ये फोकस वो एरियाज हैं जो अमृतकाल में कहा गया है। इस काल को उन्होंने प्रधानमंत्री अमृतकाल नाम दिया है, जो 47 तक हमें इनोवेशन या रिसर्च पर फोकस करना है, और जिसको दुनिया में कब ये माना जाएगा जब हम उसको पेटेंट कराएंगे। जब तक हम आईपीआर पे नहीं जाएंगे, या तो वो टेक्नोलॉजी कोई दूसरा ले लेगा या फिर वो माननी नहीं होगी। तो हमें इन डिफरेंट एरियाज पे काम करके दुनिया को देना है, और जब इन एरिया पे काम करेंगे, चाहे वाटर है, स्पोर्ट्स साइंस एंड हाइजीन है, योगा है, डिफेंस है, बायोफार्मा मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये टारगेट का फोकस एरिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के। और इनके लिए फाइनेंशियल हैंड भी दिए गए, ऐसा नहीं सपोर्ट है फाइनेंशियल, डिफरेंट डिपार्टमेंट इनको सपोर्ट कर रहे हैं। या आप देखिए अभी यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई थी, रिसर्च डेवलपमेंट पॉलिसी, वहां पर भी कुछ फोकस एरिया दिए गए थे। वो सारे एरिया वो हैं जिनमें हमें आगे जाना है। जो टारगेट रखा है उन्होंने, अगर आप देखिए
जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड है, तो उसमें जो टारगेट है हमारा कि हमको, अभी हम बहुत पीछे हैं अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो। अगर QS रैंकिंग में तो हमारी टॉप 200 में आती है और 100 में तो कोई नहीं आ रही है। हमारा टारगेट है कम से कम 10 यूनिवर्सिटी हमारी हों। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो IPR से रिलेटेड है, अभी हम 0.1% हैं करंट में। टोटल ट्रेड हमारा जो IPR बेस्ड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेस्ड होता है, यानी जो IPR हमने कराए हैं उनके पेस पे जो हमारा ट्रेड हो रहा है वो केवल दुनिया में 0.1% हम कर रहे हैं और इसको 1% पे ले जाना है। कब? 2047 तक। देखने में 1 बड़ा छोटा लग रहा है कि 100 में से केवल 1, लेकिन इस 1 को पहुंचने के लिए भी हमें बहुत काम करना होगा। और साइटेशन पर डॉक्यूमेंट हमारा जो, उसको में भी अभी दुनिया में कम है, उसको भी हमें बनाना पड़ेगा। जो रिसर्च से, IPR से, इन सेक्शन से बढ़ाना, टारगेट करना है। और ये NEP भी टारगेट कर रही है सारे मोटिव्स को, डिफरेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट की आ रही है वो भी टारगेट कर रही है, जिसके द्वारा हमें वहां तक पहुंचना है और इस सबको चेंज करना है और अल्टीमेटली हमें स्किल लेबर फोर्स पे जाना है। और इनोवेशन के माध्यम से, इनोवेशन के IPR कराने के माध्यम से हम उस स्किल लेबर फोर्स पे जा सकते हैं। करंट रेशियो की बात करें, हम 21.2 पे हैं और हम चाहते हैं 100% हो। मैम भी जिसका पार्ट रही थी। तो अब आप देखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, UG का स्टूडेंट, स्किल लेबर फोर्स है। अब स्किल में क्या रिसर्च मोटिव है, इनोवेटिव बेस्ड है या नहीं, ये आगे की बातें हैं, बट स्किल लेबर फोर्स तो होगा, ये 100% है क्योंकि हमने मैंडेटरी किया हुआ है। और समस्या ये भी है कि मैंडेटरी करने से क्या होता है, कई बार चीजें अपना आउटपुट भी नहीं दे पाती हैं। तो इस स्किल लेबर फोर्स को, जो अभी मैंडेटरी किए गए स्किल कोर्सेस, उसको लोग वॉलंटरी करें, अपनी इच्छा से करें। और वो कब पॉसिबल है? इनोवेशन से पॉसिबल है। अगर इनोवेशन आएगा किसी भी चीज में तो वो IPR की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। और आज की दुनिया बड़ी छोटी है, इंटरनेट की वजह से बहुत आसानी से आप चीजों को पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं। कभी भी इनोवेशन ऐसा नहीं है यूट्यूब पर वीडियो आ गया, आपने बना लिया, इनोवेशन हो गया। अब आते हैं हम जो कि इन दोनों में अंतर क्या है, इनोवेशन और इन्वेंशन है। जो मेरे स्टूडेंट बैठे होंगे यहां पर, उन्हें अपने दिमाग से पहले तो ये विचार लगाना होगा कि इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है। इन्वेंशन जरूर है कि एक बार होते हैं किसी एक खास क्षेत्र में, फिर उनके आधार पर हजारों इनोवेशन हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें, इसको कहते हैं अपने दिमाग को खुला रखिए चारों तरफ। अगर हम न्यूटन की बात करें, दुनिया में हर इंसान देखता है कि फल ऊपर से नीचे ही गिरता है। हर एक ने देखा था, हम भी देखते हैं। लेकिन न्यूटन ने एक प्रश्न उठाया कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और क्यों का जवाब ढूंढा न्यूटन ने। आप जानते हैं न्यूटन लॉ दिया, हम दुनिया में न्यूटन कभी भी चले जाए, न्यूटन को हम नहीं भूल पाएंगे। तो इनोवेशन क्या है, कभी कभी जो बेसिक प्रॉब्लम होती हैं या बेसिक लॉज होते हैं उनका सॉल्यूशन लेके आते हैं और ये फाउंडेशन रखते हैं सैकड़ों नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक नया आइडिया होता है इन्वेंशन, लेकिन उस नए आइडिया को डिफरेंट डायरेक्शन से देखना इनोवेशन कहलाता है। मेरी स्क्रीन हट गई क्या मैम? Yes, sir. Yes, again, it's visible, sir. इन्वेंशन क्या होंगे? ये चांस के फैक्टर हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत मेहनत भी लगती है किसी, लेकिन और इन्वेंशन सदैव IPR तो हो जाता है, तब पेटेंट नहीं होते जब चली थी। लेकिन इन्वेंशन में क्या है कि शुरुआत में ये फाइनेंशियली आपको कुछ देंगे नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन इनोवेशन से जब IPR हो जाता है तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गेन जरूर करते हैं। इनोवेशन के आधार पे आपको न केवल एक पर्टिकुलर रॉयल्टी मिलेगी, जो भी आप, जिसको भी आप सेल आउट करेंगे अपने इनोवेशन को, बल्कि एक लाइफ टाइम फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाते हैं। अब यही एक और बात करें, जैसे हम सभी जानते हैं, हम सब बाजार से फल खरीदते हैं। फल जब हम घर लेके आते हैं, हम बाहर से देख लेते हैं, अच्छा फल है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया लगता कि फ्रेश है नहीं है।
तो वो अंदर से खराब तो नहीं है। एक प्रैक्टिस में चीजें हैं, हम लेके आ जाते हैं, कई बार आधे खराब निकल जाते हैं, कभी 2 खराब निकल जाते हैं, हमें आइडिया नहीं लगता। लेकिन यदि ऐसा कुछ हो जाए कि हम जो मार्केट से फल लेके आए, हमारे पास ऐसा कुछ हो जो बता दे कि फल पेड़ से टूटे हुए कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो हम सब जानते हैं, बॉटनी के लोग जानते हैं, बड़ा आसान है इथाइलिन को काउंट करना, इसको कोई भी कर सकता था। एक गैस होती है पर्टिकुलर, 2 सिस्टर्स हैं, 2 बहनें हैं, उन्होंने उसी, कहने को इंजीनियर थी, उन्होंने, और आज भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलरीमीटर छोटे छोटे बनते हैं, बहुत बनते हैं, कलरीमीटर दुनिया में मार्केट मौजूद है, ये समस्या भी मौजूद है, और दोनों अपने अपने अलग हैं। उसका पेटेंट अलग रखा है इनोवेशन का, कलरीमीटर जो भी छोटे बने हुए थे। इन्होंने एक सेंसर लगाया, छोटा सा सेंसर लगा दिया। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया है, फल पे रखते ही उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कब वो ड्रॉप आउट हुआ है, उसका शुगर कंटेंट क्या है, 2-3 चीजें बता देता है। इससे क्या है, आप सबसे अच्छे फल छांट पाते हैं। यानी एक समस्या जिसका समाधान। अब समस्या आती है, ऐसे तो फल बेकार हो जाएंगे, आधे महंगे भी बहुत हो जाएंगे। देखिए, जो बेकार कुछ नहीं होता फल में, जब जो फल बेकार भी हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाते हैं, उनका रिसाइकलिंग होती है, कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट बनता ही बनता है, चाहे अल्कोहल बने, चाहे सीरम बने, कुछ ही बने, तमाम प्रोडक्ट बनते हैं। तो फल वेस्ट नहीं हुए, लेकिन इससे एक अच्छी क्वालिटी के, और जो पैसे वाला है, चलिए ठीक है, हर आदमी चाहता है मुझे अच्छे फल मिले, ताजी फ्रेश फल मिले। अभी ये इंस्ट्रूमेंट महंगा है नेचुरली। जो उन्होंने, जो रॉड का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, उस रॉड की कॉस्ट सिर्फ 150 रुपए थी, 150 रुपीज बनाने के बाद। उन्होंने पेटेंट फाइल किया, पेटेंट भी मिल गया। अब वो अपनी ओर से कंपनियों से लाइसेंसिंग कर रहे हैं, जो अच्छा पैसा देगा उसको दे देंगे। हो सकता है, अब ये 2 इनोवेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, एक ने यूके में किया जिससे लोग टूट के गिर जाते थे, दूसरे इनोवेशन किया उसमें स्प्रिंग लगाती, स्प्रिंग नीचे आ जाती है। लेकिन हो सकता है कोई इसमें कोई ऐसा सेंसर लगा दे कि वेट को एनालाइज कर सके। एक 100 किलो का आदमी हो सकता है, एक 50 किलो का आदमी हो सकता है फांसी लगाने वाला, तो हर एक के लिए सेम वेट की स्प्रिंग काम तो करेगी नहीं। एक तीसरा इनोवेशन हो जाएगा। तो इनोवेशन चेन होते हैं चीजों की, एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उन्हीं चीजों को नए नजरिए से देखना होता है। उनको नए नजरिए से देख के आप उस किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का समाधान देते हैं, आप कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं जिसको आप पेटेंट फाइल करा सकते हैं। एक और चीज, कई बार हमारे दिमाग में विचार आते हैं, बहुत ढेर सारे विचार आते हैं, हमें लगता है सही है, नहीं है, इससे कुछ सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं है, हम उसको प्रैक्टिकली चेक नहीं कर पा रहे हैं। अब आईपीआर में एक और तरीका दिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोविजनल आईपीआर। आईपीआर इनिशियली आप एक थॉट बेसिस पर फाइल कर सकते हैं, एक बेसिक चीज पर। तो एक चीज है, आपका आईपीआर नहीं मिला है, लेकिन उससे उस चीज को अगर कोई और क्लेम करेगा तब तक आईपीआर आपका होल्ड पे है, आपको प्रूव करना है भी उस चीज को। और ये होल्ड 1 साल तक रह सकता है किसी चीज के लिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ दे दिया और फिर आप भूल गए उसको और कोई नहीं ले पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी प्रोविजनल जो आईपीआर आते हैं वो होल्ड पे हो जाती है। आपकी कोई पॉलिसी, आपने जो कुछ भी आपने सोल्यूशन ढूंढा है उस सोल्यूशन को आप ड्राफ्ट कर देते हैं, वो आपका होल्ड पे चला, इसकी छोटी सी फीस होती है। और उसके बाद आप, अब 1 साल का समय है, आप उसको अपने आइडिया को इंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। और हमारी जो आईआईसी है ये हर स्टूडेंट को, हर टीचर को प्लेटफॉर्म दे रही है, हैकाथन हो रही है। छोटा सा भी आपका आइडिया है, आप नहीं जानते हो इनोवेशन है या नहीं है, आप उसमें फाइल कर सकते हैं। वो आपका आईपीआर, पेटेंट वगैरह सारा कुछ कराएंगे, चेक कराएंगे, उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। क्योंकि हर इनोवेशन इकोनॉमिकली वायबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक वायबल का मतलब ये है कि हो सकता है वो मार्केट में उसकी कॉस्ट बहुत हो जाए। जब कॉस्ट ज्यादा होगी, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट मैंने फल वाला एग्जांपल दिया और उसकी कॉस्ट काफी हो, 10,000 हो, 15,000, तो आदमी सोचेगा इतने के फल तो मेरे साल में चलेंगे, वो भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसकी कॉस्टिंग भी होनी चाहिए। लेकिन वह इनोवेशन के बाद आईपीआर हो, पेटेंट हो गया, अब इकोनॉमिकली वायबल है नहीं है वायबल, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखते हैं।
लेकिन उसका पेटेंट आप करा सकते हैं, वो मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है पेटेंट को, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी आपको देखना जरूरी है, वरना फिर एक आइडिया प्रोडक्ट करा लिया लेकिन आपका क्या होगा उसका ये नहीं पता। एक और चीज, कई बार जो इनोवेशन होते हैं इनिशियली कोई प्रोटोटाइप बनता है, प्रोटोटाइप कहते हैं हम छोटा सा जो आइडिया है, जो कुछ प्रोडक्ट बनाया उसका एक दो छोटे छोटे हमने बना लिए, उसके जो प्रोटोटाइप बना वो प्रोटोटाइप उसकी फिर मार्केट में देते हैं, लोगों को देते हैं, तो चेक करते हैं उसकी वायबिलिटी है या नहीं है, और ये वायबिलिटी है तो आगे जाता है मार्केट में, कॉमर्शलाइज हो जाता है, उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन प्रोटोटाइप के स्टेज पे क्या होता है, हम अपने जो भी हमने बात सोची है वो वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, उसको हम पेटेंट की तरफ नहीं ले जाते हैं। पेटेंट कुछ भी आपने काम किया आप नहीं जानते, आपको लगेगा बड़ा कॉमन सी चीज है, लेकिन जब आप पेटेंट फाइल करेंगे वो उनका काम है बताना कि पेटेंट लायक है या नहीं है। आप प्रोविजनल तो जा सकते हैं, तो इस पे काम करिए प्रोटोटाइप पे, और छोड़ दीजिए इकोनॉमिक वायबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आज से 20 साल बाद इकोनॉमिक वायबल हो जाए, 10 साल बाद इकोनॉमिक वायबल हो जाए, तब पेटेंट प्रॉपर फाइल हो गया वो तब होगा, प्रोविजनल पर आपको कुछ नहीं फायदा मिलेगा। तो प्रोटोटाइप बना के जिसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी न हो, आप इस सिस्टम को आगे ले जा सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। अल्टीमेट इनोवेशन क्या है, सिर्फ, और मैं तो कई बार मैं अपने आप ही एक वो करा रहा हूं अपने पेरेंट्स के नाम पर, मैं बच्चों से कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं आप समस्याएं ढूंढ के लाइए, एक व्यक्ति एक समस्या ढूंढ के लाएगा अपने आसपास की, और जो टॉप 5 समस्याएं होंगी, सोल्यूशन, मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट से। आप और बच्चे, आप कह दिए एक लंबी लाइन लगा देगा समस्याओं की, आपको उससे कहना है एक ऐसी समस्या छांट के लानी है जो दूसरे की ना, यूनिक समस्या ढूंढ के लाओ, आप अपने घर में हो, अपने आसपास हो, कैसी भी हो आप लेके आओ, उसमें जो 5 समस्याएं होंगी टॉप, आप उसको किसी ढंग से अवार्ड करेंगे। जो 5 समस्याएं मिल गई, बेसिकली समस्याएं पहचानना भी अपने आप बड़ा काम है, यानी किसी चीज को उस नजर से देखना है स्टूडेंट को। जब समस्या मिल गई उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्हें कहिए, फिर देखिए आपको क्या इनोवेशन होने लगेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं कोट करूं, हम सभी जानते हैं जो कार्बन क्रेडिट था, कार्बन क्रेडिट क्या चीज थी, पॉलिसी थी, जो अर्थ समिट हुई थी उसमें डिसाइड हुआ कि डेवलपिंग कंट्री हैं उन पे इतना पैसा नहीं है, डेवलप कंट्री बहुत हो गए, तो उनको क्या है एनवायरमेंट को बचाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। और वो क्या है, वो पैसे कौन देंगे, वो देंगे बड़े कंट्रीज, क्योंकि वो ज्यादा CO2 इस्तेमाल कर रहे थे कार्बन क्रेडिट में, तो इंडिया को पैसा मिलता था उसमें, और उसमें ये होता था कि आप कितना ग्रीन लगा, कितनी CO2 ले रहे हैं, एक टन CO2 को एक कार्बन क्रेडिट बनता था उस समय। तो CO2 को कम में CO2 जितना कम करेंगे उतना ही क्रेडिट मिलेगा, और ये मिलता रहा। लेकिन इससे पहले जो US प्रेसिडेंट थे बाइडन, अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने कहा इंडिया के लिए वो कार्बन क्रेडिट बंद कर दिए। क्या अमेरिका ऐसे बड़े कंट्रियों ने क्या स्टार्ट किया, स्पेशली पंजाब में, उन्होंने क्या, पंजाब के किसान बड़े संबंध होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके खेतों को पूरा, हर फसल का एक पर्टिकुलर होता है कि ये फसल ग्रो करने में इतना कार्बन एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से। तो उन्होंने, क्योंकि पैसे वाले लोग थे, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में तो कोई चेंज नहीं किया, बल्कि डेवलपिंग कंट्री में आए उन किसानों को उन्होंने पैसे देना शुरू किए, 1 टन का आपको $1 देंगे CO2 का, उसका जितना खेत था उसको उन्होंने साइन किया, और वो जो बेसिकली इंडिया के पार्ट से CO2 कम हो रही थी वो CO2 अपने अकाउंट में जुड़वा दी, क्योंकि उसका पेमेंट इन्होंने कर दिया। उसका भी बेनिफिट लेने लगे कि हमने CO2 दुनिया में इतनी कम, प्रैक्टिकली उन्होंने CO2 कम नहीं की, डेवलपिंग कंट्री की CO2 को अपने खाते में वहां के पैसे देके अपने जुड़वाने लगे वो, लेकिन जो उनका टारगेट दिया गया था इतनी CO2 कम करनी, वहां जोड़ने लगे। लेकिन बाइडेन आए, उन्होंने क्या किया कि इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काउ डंग, एनिमल डंग, गोबर जिसको हम बोलते हैं, और पेडिग्री फील्ड। हम सभी जानते हैं मीथेन, जो साइंस के स्टूडेंट वो सब जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपेयर मीथेन 4 गुना ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, 4 गुना ज्यादा हमारे पास हीट को जनरेट कराती है।
उन्होंने कहा कि ये CO2 नहीं है, बल्कि इंडिया और स्पेशली चाइना को भी उन्होंने डाल दिया कि इंडिया और चाइना दोनों सबसे बड़े प्रोड्यूसर है कार्बन मतलब ग्रीन हाउस के लिए, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड बंद करते हैं, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अब इन समस्याओं को देखें कि भी ये काव डंग है, गोबर है, इसको कैसे हम उसको रिसाइकल चेंज करें ताकि ये एनवायरमेंट में रहे। जो खेत हैं उनका क्या यूज कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। एक का और एग्जाम्पल उन्होंने पेटेंट क्या कराया, और ये खेती सबके यहाँ हो रही है, और मैं एग्जाम्पल इन्हीं सबसे देख के दे रहा हूं आपको। जो ये कंपोस्ट फार्मिंग है बहुत दिनों से होती है। कंपोस्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जो धान का खेत होता है उसके साथ पिसीकल्चर किया जाता है, यानी मछलियां उगाई जाती हैं, स्पेशली बिहार वगैरह में या बंगाल वगैरह में बहुत होता था। बेनिफिट क्या था, धान जो होता है उसको यूरिया बहुत ज्यादा चाहिए, नाइट्रोजन। तो फिश होती थी वो अपना एक्सीड वेस्ट में यूरिया निकालती हैं, और धान के शुरुआत के खेत में पानी भरा रहता है, तो उन्होंने छोटी छोटी फिश मार दे देती थी। वो एक तो जो गंदगी जमा हो जाती है जड़ों पे, उसको अपना फूड लेती थी, साथ में यूरिया देती थी, और उससे ग्रोथ उसकी बढ़ जाती थी। दोनों का कंपोस्ट फार्मिंग, दोनों का बेनिफिट होता, उन्हें फूड भी मिलता था और उनको यूरिया लेके बढ़ जाते थे। ये एक सिस्टम में चला रहा था। थोड़ा सा इनमें एक ने मॉडिफाई क्या किया है, तो उसने इस सिस्टम को मॉडिफाई किया, इनोवेशन किया। जब ये चीजें हो रही थी तो उसने अब उल्टा क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि जो फिश पॉन्ड होते हैं उनके पानी वेस्ट होता है, उसे हम बार बार निकाल के चेंज करते हैं टाइम के बाद, पर वो वेस्ट नाइट्रोजन रिच होता है। उसने उस वाटर को बाहर किया, जो नियर बाय खेत थे वहां तक सप्लाई किया, उससे कॉस्टिंगली यूरिया बेस्ड पानी मिल गया उनको। दूर जाने के लिए क्या हुआ, उसने उससे एक मैन्युअल डेवलप की, डिहाइड्रेट कर सुखा के उसको, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी आती है। और वो मानिए वो यूरिया इतनी अच्छी भी आती है, जो एक तो नेचुरल है, केमिकल नहीं है, और जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसने इस प्रोसेसर को उसने पेटेंट करा लिया। ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार हो रहा था। जो तालाब थे जिनके वो साफ करते थे, गंदगी का फेंक देते थे, किनारे कर देते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस चीज का भी पेटेंट कराया जा सकता है, ये छोटी चीज का भी। तो हम बहुत से कई बार काम कर रहे होते हैं, एक प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं, हमें ये आइडिया नहीं लगता कि हम वाकई पेटेंट की तरफ जा रहे हैं या हम कुछ और कर रहे हैं। हम पेटेंट करा सकते हैं, बस हमारा दिमाग या हमारा नजरिया जो है वो उसको देखने वाला होना चाहिए, और यही स्टूडेंट में एक आदत डेवलप होनी चाहिए। जो NEP 2020 कहती है, इसीलिए एक बात कही गई NEP 2020 में कि UG यानी BSc फर्स्ट ईयर, हमारे बहुत से साथी जब NEP या सिलेबस फार्मिंग हुए कि बच्चे क्या रिसर्च करेंगे, UG का बच्चा, आप UG में रिसर्च डाल रहे हैं। पहली बात तो जब NEP बनाने वाले लोग हैं यूपी में, तो हम लोग तो बहुत पीछे आए बाद में, उन लोगों ने भी कुछ तो सोचा होगा। उन्हें भी पता है कि गांव के बच्चे हैं इस देश में, वो कैसे रिसर्च करेंगे। अगर आप NEP का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पढ़िए तो उनमें ये कहा है रिसर्च माइंडसेट डेवलप करना है, किसी चीज को तर्क के नजरिए से देखना है। ये जो इंटर करके स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, BA में प्रवेश ले, अगर उसका माइंडसेट ऐसा हो गया कि समस्या वो देखने लगे उस नजरिए से, तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान में IPR की कमी नहीं है। सैकड़ों इनोवेशन है। कमाल क्या होता है मालूम है? कमाल कई बार ये होता है कि हम जो इनोवेशन करते हैं, हमारे लोग जो इनोवेशन करते हैं, हम उसको मजाक में टाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं जुगाड़, लोगों ने उसमें पहिया लगा दिया है ना, थोड़ा वो, और उसका लाइसेंस नहीं होता है, थोड़ा तेज चलने लगता है, या रिक्शे में वो लगा ली, एक मोटर लगा ली, और इन सबको मजाक के नजरिए से जुगाड़ बना दी। इंडिया जुगाड़ के लिए बहुत पॉपुलर, इस पे चला गया। यही जुगाड़ जिसको हम कह रहे हैं, चाइना ने इस जुगाड़ को पेटेंट करा के मार्केट में बेच दिया। समस्या थी कि आदमी चला रहा था रिक्शे को बहुत देर तक, या दूर दूर जाने, बड़े बड़े गाड़ियां नहीं खरीद सकते, उन्होंने मोटर लगाई, छोटा सा उसको हेल्प कर लिया। तो ये जुगाड़ भी अगर कोई शुरुआत हुई तो इसको कोई अगर पेटेंट कराता तो ये भी पेटेंट हो सकता था। तो जो हम तरीके निकालते हैं बहुत से काम, घरों में काम करने के, आसपास काम करने के, जिनको हम जुगाड़ नजरिए से देखते हैं, चला लिया, या हम एक कहते हैं ना कि हीन भाव नहीं कह सकता हूं मैं, तो ये कह रहे इंडिया जुगाड़ के लिए पॉपुलर है, किसी चीज में जुगाड़ हो जाती है हमारे यहाँ, वो जुगाड़ ही बेसिकली इनोवेशन है और पेटेंट करा सकते हैं उस जुगाड़ का।
हम उसको तरीका देखना होगा। चाइना से कम्पीट करना है तो उस जुगाड़ को पॉजिटिव वे में ले जाके उसको उसकी चीजों में ले जाते हुए अपने नाम पे लाना पड़ेगा। और जो टारगेट हमारे उसमें हाई क्वालिटी इंटर्न टीचर्स की बहुत बात है। एक और चीज हमने फिक्स कर दी है। एक और बात आई थी जब एनईपी बात चल रही थी, सिलेबस हो रहे थे, भाई साइंस वाले बच्चे को आप आर्ट्स पढ़वा रहे हैं या आर्ट्स वाले बच्चे को आप कह दे रहे हैं माइनर में जूलॉजी पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, वो कैसे पढ़ेगा जिसने कभी नहीं पढ़ी है। ये क्या थे जो उसके बंद दरवाजे थे दिमाग के। उसे पता है इंटर करके आया जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़नी है उसे। अब आपने उसको खोला है, जब खोलेगा तो हो सकता है म्यूजिक पढ़ के उस म्यूजिक में साइंस का स्टूडेंट कुछ नया इनोवेट कर सके। जो बाउंड्रीज इसलिए तोड़ी गई हैं और इसीलिए मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी बात होती है कि जितनी ज्यादा आप मल्टीडिसिप्लिनरी लाएंगे उतना ही आपके चीजें आगे बढ़ेंगी। तो जो 47 हमारे टारगेट हैं 47 तक के लिए, उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे रिसर्च हमें बहुत करनी है, सैनिटेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो फील्ड हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको इनोवेशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एक टर्म अलग ही है, इनोवेशन कोई भी कर सकता है। रिसर्च के लिए चलिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इनोवेशन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इनोवेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। इन फील्ड पर करने के लिए ये प्रायोरिटी ज्यादा है गवर्नमेंट की, जिन पे देनी है। जो रिसर्च के लिए बात की गई है एनईपी में कि कैसे रिसर्च को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वही के एक तर्क बेस्ड, यानी हम अगर एनईपी की तरफ देखें, एनईपी के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अब तो फाइनल जो था उसमें देखें शुरुआत में क्या बात कही है उन्होंने। क्या है कि हम जो ये माइंडसेट जो हमारा चेंज हुआ, हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। मीन कि हमने स्टूडेंट को एक एग्जामिनेशन पैटर्न बांध दिया, आएगा 3 घंटे का पेपर देगा और चलता बनेगा, और वो रटने उसके माइंड को हमने लिमिटेड कर दिया। तो इसीलिए उस माइंड को खोलने के एनईपी ने कहा कि बच्चे से, छोटे बच्चे से लेके आपको तमाम रोल प्ले कराने हैं, कोई छोटी छोटी लर्निंग एक्टिविटीज देनी है जिससे उसके दिमाग में चीजों को क्यूरियोसिटी की नजर से देखे, वो इन कुछ उसको नया नजरिए से देखो। जैसे वो देखेगा वो इनोवेशन आईपीआर की तरफ चलने लगेंगी चीजें। समझाना चाहिए हमें अपने बच्चों को ये समझाना है कि वाकई क्या समस्या का समाधान कैसे आप पेटेंट तक जा सकते हैं। वरना बड़ा टर्म है, बच्चे भाग लेते हैं। आवाज मेरे में आ रही है? हेलो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू अनम्यूट। हेलो, मेरे में आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, स्क्रीन नहीं है सर, अगेन शेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा, स्क्रीन दोबारा शेयर कर दीजिए। यस सर, यस। और बाकी सभी बच्चे प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है। तो यस सर। अगर हम बच्चों से, जैसे हम बड़े बड़े टर्म की बात करते हैं कि बच्चा इनोवेशन करिए, कुछ रिसर्च करिए, तो बच्चों की समस्या बाहर होता है और उन्हें लगता है बहुत बड़े काम है। अगर आईपीआर कह दिए तो लगेगा पता नहीं, वो हमारे फैकल्टी को लगता है अरे पेटेंट कैसे हो सकता है, बहुत बड़े टर्म लगते हैं ये। लेकिन आप मान के चलिए चाइना इसलिए हावी है, उसने छोटी छोटी चीजों को अपने हाथ में पेटेंट करा लिया, जो भी देखा उसका नए ढंग से। हमारा हाथ से घूमने वाला पंखा था, उसमें छोटी मोटर लगा दी उसने, वो अपने यहाँ करा लिया। हम भी वो कर सकते थे और कर रहे हैं, लेकिन हमें इनको ऐसा नहीं देखना है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, बल्कि देखना है रूटीन चीजें हैं। अगर हम देखेंगे तो हम कर पाएंगे, और यही चीज सबसे ज्यादा हमें अपने स्टूडेंट को समझानी है। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। जितनी ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी आएगी बच्चे के अंदर, उतनी आप मान के चलिए उसका माइंडसेट ओपन होगा और वो उसका देखने और सोचने का नजरिया बदलेगा। और जैसे ही देखने को, सोचने का नजरिया बदले, आप मान के चलिए वो इनोवेशन भी करेगा और पेटेंट भी करा लेगा। और एजुकेशन जो बात की गई है कि ऐसा नहीं है केवल हम रट्टा तोता बना दें उसको, हर ढंग से हॉलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। हम बच्चे को अर्निंग मशीन नहीं बना रहे हैं कि पैसा निकालने वाली मशीन बना दें, पैसा बहुत कमा ले लेकिन उसमें वैल्यूज ना हो।
हॉलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम सब जानते हैं, सभी जगह लागू हो गया है कि यूजी लेवल पे से ही अब हायर में रिसर्च की बात की गई, रिसर्च ऐड की गई है। मैं उसको बात करूं, कैसे रिसर्च करा सकते हैं यूजी के बच्चों को। जो कॉलेज हैं, जब ऐसी चीजें हो जाए, वैसे तो आईआईसी जहां पर है वहां उसे तो आईपीआर की दिक्कत आएगी और न प्रोटोटाइप बनाने के लिए दिक्कत आएगी, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी जब ये जो लोग वहां कर रहे हैं। लेकिन जहां नहीं है, और मेरा तो मानना है आईआईसी सबको, ये हर गवर्नमेंट कॉलेज में एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। कहीं कोई पैसा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, एक बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म बनानी है, वो आपको हेल्प ही कर रहे हैं लेक्चर कराने के लिए, आपको कुछ वर्चुअल लेक्चर कराने हैं उनके, और कोई जरूरी गांव का कॉलेज भी वो काम कर सकता है। और इस सब का अल्टीमेट मोटो ये है कि एक रिसर्च माइंडसेट हमको डेवलप करना ही करना है। बिना रिसर्च माइंडसेट डेवलप किए हुए हम ना इनोवेशन कर सकते, और फिर आईपीआर तो बहुत दूर की बात हो गई। और जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको मैं रिसर्च प्रमोट करनी है, स्पेशली संस्कृत में। तो बहुत से डॉक्यूमेंटेशन हमारा संस्कृत में है, अगर बच्चे संस्कृत जानेंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी कर पाएंगे, तो मान के चलिए जो डॉक्यूमेंटेड चीजें उनको प्रैक्टिकल चीज कर पाएंगे। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है सिर्फ कि आईपीआर एक ऐसा माध्यम है जो आपके किसी इनोवेशन को, किसी थॉट को दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ये कहता है कि ये लीगल है, ये मेरा काम है। आईपीआर सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, आईपीआर अपनी नॉलेज को प्रोटेक्ट करने का माध्यम भी है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो उस सब चीजों को करना है। अब आते हैं हम यूजी रिसर्च की बात करें। मुझे आइडिया नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लागू किया नहीं किया यूजी रिसर्च में, लेकिन बाकी स्टेट में लागू हो गया है। यूजी लेवल पर रिसर्च वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे काम करा सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल पकड़ूं, मैंने जो मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है, अगर एमएससी में बच्चे ने कोई भी केयर लिस्टेड पब्लिकेशन करा लिया तो उसके सीआई 25% नंबर मार्क्स उसे पूरे पूरे मिल जाएंगे। यानी इंटरनल असेसमेंट पूरा छोड़ के केयर लिस्टेड पब्लिकेशन करा ली। ये हमारे यहां भी लागू हो गया है, मेरे कॉलेज में भी लागू है, और एमएससी वाले बच्चे कर रहे हैं। मेरे कई पब्लिकेशन आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे हैं। और रिसर्च कैसे होती है, एक बहुत छोटी बताऊं, जो मेरे नाम से आप देखें, मेरे पढ़ी हुई है रिसर्च, अच्छे पब्लिकेशन में पब्लिश हुई है वो, बाद में और लोगों ने भी किया। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ब्लड ग्रुप एंड कोविड? सिंपल सा सवाल था। स्टूडेंट एमएससी के 2 स्टूडेंट मिली, एक क्वेश्चनर गूगल पर बनाया, और जितने उन्होंने कई 100 लोगों से उन्होंने जिनको कोविड हो चुका था उन्होंने बात की, और एक कोरिलेशन निकाल कर दिया कि हाँ बी पॉजिटिव रिलेशन को कोविड ज्यादा हो रहा है। इसके रीजन क्या ही हो सकते थे, लेकिन उनका यहां काम खत्म हो गया पब्लिकेशन में। लेकिन इसका रिलेशन कई और थे। अगले स्टेप पे क्या हो सकता है कि बी पॉजिटिव में क्यों हो रही है? जो डेटा दुनिया में डेटा ए बी पॉजिटिव का था, यही अगर बाहर आप देखिए यूके में एक सेम काम किया गया, तो उसमें उनके पब्लिकेशन में ए बी पॉजिटिव ज्यादा आया, हिंदुस्तान में बी पॉजिटिव आया। जो हिंदुस्तान क्या कहेंगे, छोटा सा हमने दिल्ली का उन्होंने लड़कियों ने जो एरिया लिया था वह बी पॉजिटिव था उनका एरिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आगे इस पर हम बात कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक कॉल ले लूं, बहुत देर से आ रही है। सॉरी, कहाँ था मैं? सर जो सर्वे किया था बच्चों ने दिल्ली पर, हाँ, ब्लड ग्रुप। तो बी पॉजिटिव ग्रुप, आप इस पे ये देखा जा सकता है बी पॉजिटिव क्यों। अगला हमने असाइनमेंट को दिया गया है कि अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में ब्लड ग्रुप कौन सा ज्यादा है। ये कोरिलेशन भी तो हो सकता है। छोटी छोटी रिसर्च है। आपके यूजी के बच्चे हैं, एक और मैंने जो काम कराया था अपने बादलपुर, जहां मेरा कॉलेज उसके आसपास के काम किया स्टूडेंट को, कि आप देखिए स्मोकिंग का सर्वे कि कितने लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। और ये आपको 100 घर में घूमना है, केवल 100 आसपास के जो भी घर हैं टिक करते लाना है कि यानी कौन कौन सिगरेट पीता है, नहीं करता है, या बीड़ी पीते हैं, जो भी स्मोकिंग करते हैं। आप कमाल देखिए, कंक्लूजन जो माइंडसेट था, मेरा भी माइंडसेट था कि नेचुरल सी बात है कि ज्यादातर मेल आएंगे, मेजॉरिटी आई फीमेल की उस एरिया में, और फीमेल में कौन सी 60 प्लस वाली,
और उनका भी रीजन देखिए क्या था, वो स्मोकिंग इसलिए करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हर एक का नजरिया है, पर ये डॉक्यूमेंटेड हुआ और पब्लिकेशन में चला गया। तो रिसर्च बहुत छोटे छोटे, हम अपने छोटे छोटे 20 लोगों पे 30 लोगों के उसके घर के आसपास कोई भी एक समस्या दे, कुछ भी उससे डेटा एनालिसिस करा लेंगे। लेकिन इस चीज से 3 कंक्लूजन, जैसे उसको भी लगता होगा कि नहीं जेंट्स ज्यादा पीते हैं, बच्चों को भी, तो हर एक का रीजन एक समस्या उसको पता लगा। लेकिन रिसर्च हम छोटे यूजी रिसर्च नहीं है, रिसर्च के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट की जरूरत है। यूजी लेवल में रिसर्च माइंडसेट डेवलप करना है, और इसीलिए कहा गया है कि आपके पास सीआई के 25% नंबर हैं। लखनऊ का आइडिया नहीं, फिर मैं अगेन कह रहा हूं, हमारे हर पूरे प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कोई बच्चा डेटा एनालिसिस करके लाएगा, आप उसको बाद में अच्छा लाइक पब्लिकेशन करा सकते हैं, तो आप उसमें सीधे उसको अगर 25 नंबर का कह दिया, आपको कुछ नहीं देना, आपको सीधे 25 नंबर मिल जाएंगे, बच्चे इसमें अट्रैक्ट होंगे। अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी जिसको हम आगे बात कर रहे हैं, वो ये कह रही है कि अगर केएल स्टेट एक पब्लिकेशन करा लिया आपने, तो आपको उतने क्रेडिट का माना जाएगा जितने क्रेडिट का आपका पेपर है। आपको जो टफ पेपर लगा छोड़ दीजिए, बच्चे करेंगे, वो किसी टफ पेपर को छोड़ने के लिए, एक पब्लिकेशन के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, डेटा लेके आएंगे, और जो साइटेशन धीमे धीमे बढ़ेगा। तो रिसर्च कोई, जब तक हम उसको डर के नजरिए से देखेंगे, बड़े नजरिए से देखेंगे, तब तक नहीं होनी है। जब उसको इजी गोइंग देखेंगे तो बहुत हो जाएगी। पीएचडी की रिसर्च की बात, रिसर्च टर्म जरूर पीएचडी के लिए है, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे आंकड़ों बेस्ड सब रिसर्च हो सकती है, लैंग्वेज में हो सकती है। कुछ नहीं, आप ये सर्च करा सकते हैं कि भाई सूरदास हैं, कबीरदास हैं, कितने लोग उनके दोहों को जानते हैं, उस पर करा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं। क्या उनका समझते नहीं करते हैं, कब से चले आ रहे हैं, कुछ भी करा सकते हैं, आंकड़े बेस्ड रिसर्च हो सकती है। लेकिन इस काम से मान के चलिए, बच्चे का जो दिमाग है, जिसका मोटिव माइंडसेट चेंज करना, जो इनोवेशन की तरफ हमारा है, वो बच्चे का माइंडसेट जरूर हो जाएगा। पब्लिकेशन हो ना हो, लेकिन बच्चे का माइंडसेट जरूर चेंज हो जाएगा। रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए हम सभी जानते हैं, एक एनईपी ने बात की है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ, उसी की तर्ज पे स्टेट रिसर्च फाउंडेशन भी बनने वाले हैं सेम। और इसका काम क्या होगा? एक तो काम है कि जितनी हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं, जितनी डीएसटी, डीबीटी, आईसीआर, यूजीसी, जो भी है, यूजीसी बहुत दिनों से नहीं दे रही है एटलीस्ट, इन सबको एक एक्युमुलेट करना, एक जगह लाना है और रिसर्च फंडिंग को प्रमोट उसके थ्रू जाना है। छोटी छोटी सीड मनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को देना है, जिससे रिसर्च फैसिलिटी, रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। अब देखिए, मैं लखनऊ में आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आया, मैंने कई यूनिवर्सिटी प्राइवेट घूमी है, मैंने इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंटेशन देखा, फैसिलिटी देखी, मुझे आईटीआरसी तक में नहीं देखने को मिली थी। जब मैंने आईटीआरसी में भी काम किया, किसी जमाने में आईटीआरसी हुआ करती थी लखनऊ में, उसका नाम बदल गया है अब जब मैं पीएचडी कर रहा था। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने सारे कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ के रिसर्च कर सकते, कोई भी कॉलेज के बच्चे, किसी छोटा सा काम है, कुछ टेस्टिंग करानी है आपको, मान लिया एक जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज हैं, केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री लैब में केमिकल इस्तेमाल होते हैं और सारे केमिकल वाटर ड्रेनेज में जाते हैं। कहीं कोई किसी भी कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, कितने भी सही, चाहे सल्फ्यूरिक कुछ भी सही, क्या वो लीच करके वाटर में जो ग्राउंड वाटर आ रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं उनके कंपोनेंट। छोटा सा पानी, 2-4 जगह पानी ले लें, उसका अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है, वहां जाकर एचपीएलसी करा लें, आप देखिए पता लग जाएगा, रिसर्च हो जाएगा कि भाई इसका एक काम होना चाहिए। एक समस्या है बहुत बड़ी, और मैं गारंटी दे रहा हूं, इस पर मेरे यहाँ एक रिसर्च भी एनरोल्ड हो रही है मेरे अंडर ही, जिसको मैंने टारगेट दिया था कि आपको सिर्फ 5 हॉस्पिटल, 5 कॉलेज टारगेट करने हैं, उनके आसपास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपकी वाटर की एनालिसिस करनी है कि जो लीच आउट हो रहा है कि वाटर के थ्रू ऊपर तो नहीं आ रहा है। और ये है समस्या हमारे यहाँ किसी भी कॉलेज में, आप देख लिए कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है किसी भी केमिकल को देने, चाहे जूलॉजी लैब हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे कोई भी हो। जूलॉजी में जहां रिसर्च होती है, आप जानते हैं कॉल्सिन इस्तेमाल होता है। कॉल्सिन एक ऐसा केमिकल जो हाईली कार्सिनोजेनिक केमिकल है, जहां भी क्रोमोसोम की स्लाइड बनती है कॉल्सिन इस्तेमाल होता है, वो सारा का सारा पानी में जाता है, कहीं नहीं जाता। तो इन सब समस्याओं को डील करना है, तो इन सब के लिए डील करने के लिए रिसर्च सीड मनी की बात की है, सीड मनी दी जाएगी और हर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए फंडिंग की जाएगी, या दी जानी चाहिए। और इंटर कोलैबोरेशन होगा, जितने हमारे स्टेक होल्डर हैं वो सारा काम ये एनआरएफ देखेगा और स्टेट लेवल में एसआरएफ देखेगा, जो इनोवेशन की तरफ ले जाएगा। और इसका मोटिव ये है कि हम जो टारगेट कर रहे हैं, एनईपी का टारगेट 35 है,
2035 तक 15 साल के अंदर। लेकिन जो हमारा अमृतकाल चल रहा है या आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा 2047 तक है। हमें 100 साल जब आज़ादी के पूरे हों तो हम दुनिया में जो हमने टारगेट अचीव किए एटलीस्ट वो कर लें। और बहुत बड़े टारगेट नहीं रखे हैं इस पे, तो क्या करना, ही तो फाउंडेशन थी। हाँ, मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि रिसर्च हम कहाँ से लेके आए। रिसर्च यूजी में हमने 3rd सेमेस्टर में डाल दिया, 3rd और 4th में, सॉरी 3rd ईयर में, 5th और 6th में डाली है। अब 5th तो यानी तीसरे साल में हम रिसर्च करा रहे हैं। 1st ईयर 2nd ईयर हम क्या कराएंगे रिसर्च के बारे में। 1st ईयर और 2nd ईयर में आपको CIE कंटिन्यूअस इंटरनल एवल्यूशन दिए गए हैं, जिसके 25 नंबर हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में। तो वो 25 नंबर आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा माइंड से, रिसर्च माइंड डेवलप करने के लिए 25 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं और वो 25 नंबर दे दीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं, आप बच्चों से कहिए आप कोई वर्कशॉप करके आइए, कोई सेमिनार करके आइए, आपको इतने नंबर हम दे देंगे सर्टिफिकेट देने पर। CIE की लिबर्टी बाउंड्रीज नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड है। CIE की ब्यूटी ये है कि बच्चा, आप डिफरेंट चीज दिए। आप कहीं जू में घूम के आ रहे हैं, आप किसी विजिट पे गए, आपने एक आर्टिकल लिख के दिया आधा पेज का हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे, आप उसको असाइन नंबर दे दीजिए सीधे उसको। किताब, क्योंकि किताब बुकिश एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है हमारे पास, उसको जितनी एक्टिविटी हैं उनको मार्किंग फॉर्मेट कर दिए कि आप ये करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे। तो बच्चे, आप देखिए वही बच्चे करेंगे जिनको हम गांव के बच्चे कहते हैं, हम गरीब बच्चे कहते हैं, वो सब कुछ न कुछ करके लाएंगे। ज्यादा मैं कुछ कहते हुए तो पूरा स्ट्रक्चर हम सबने देखा ही है। मेरा ये कहना है कि जितने हमारे बच्चे हैं वो कुछ सवाल करें तो हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि चीजें चलती रहेंगी। मेरे साथी, मेरे बच्चे कुछ सवाल पूछें। जी, सबसे पहले मैं एक बात कहूँ। जी मैम। आवाज आ रही? जी आ रही है मैम। जी, मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा कष्ट तो होगा, किंतु आप अगली बार जब भी आपका लखनऊ का प्रोग्राम बने तो हम लोग एक मीटिंग जरूर आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी हम मतलब एज ए प्रिंसिपल हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहती हूँ, यही इसी से रिलेटेड जो भी आपने बताया है, हम लोग एक परिचर्चा करें जिससे एक परिदृश्य थोड़ा सा साफ हो जाए। और मेरे ख्याल से जितने खूबसूरत तरीके से आपने सहज और सरल चीजों को इनोवेशन में रखते हुए और उदाहरण देते हुए ये समझाया कि किस तरह से चाइना इस दिशा में आगे निकल गया, तो बात यही है कि हमारे यहाँ शायद थोड़ी सी मार्गदर्शन की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है। तो कुछ आपकी तरह के लोग इस तरह का थोड़ा सा दृष्टि साफ करेंगे तो बच्चे काफी कुछ कर पाएंगे और जो NEP का उद्देश्य है वो भी काफी कुछ पूरा हो जाएगा। बिल्कुल मैम, और आगे के इंतजार में। थैंक यू मैम। मैं जब भी आऊंगा बिल्कुल मैम। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग मिलकर, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ है, बस हमें अपना नजरिया बदलें और उसको हम ये देखें बहुत बड़ी चीज है। ये बहुत छोटी चीज लेंगे चलेंगे तो आप मान के सब हर कॉलेज में पेटेंट होने लगेंगे। बिल्कुल सही। Thank you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। This is Sarita from this side. जी बोलिए। Thank you, sir, for your valuable lecture. Sir, there is one question that just I wanted to ask, that how IPR is playing role in school awareness? इन स्कूल अवेयरनेस? Awareness, yes, sir. नहीं, आपका सवाल यह है कि IPR को कैसे स्कूल में अवेयर किया जाए या IPR स्कूल में Yes, sir. Yes, sir. दोनों चीजें हैं सर, both. देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि IPR, जैसे मैंने कहा कि जब भी हम IPR वर्ड की बात करते हैं, सुनने वाले को, देखने वाले को, बच्चों सबको एक बहुत बड़ा टर्म लगता है। वहां एक दो प्रोग्राम होने चाहिए। एक तो बच्चों के लेवल पे जहां हम इस वर्ड को ज्यादा टारगेट ही नहीं करें बच्चों के सामने, क्योंकि एक फियर फैक्टर आ जाता है बच्चों के साथ। इसके लिए एक सेल या कुछ लोग हों कॉलेज में जो उनकी बातों सुने। बच्चों को तो सिर्फ इतना कहना है, जैसा मैंने पहले भी कहा या मैं जो कर रहा हूं, कि आप समस्याएं ढूंढिए। चाहे आपके घर में, आपके स्कूल में समस्या क्या आ रही है, आपके मम्मी पापा की समस्या क्या आ रही है, हो सकता है उसकी मदर किसी अच्छे ढंग से सब्जी काटती हो, है ना। तो कुछ नया देखिए जो आपके घर में आपको लग रहा है कहीं और से हो रहा है।
ऐसी चीजें लेके आइए, और जब ये चीजें वो ले आए तब तक उससे आईपीआर की बात बिल्कुल मत करिए। जब वो कुछ लेके आए कि ये चीजें, तब उसको समझाइए कि आईपीआर होता क्या है, इनोवेशन क्या होता है, तब उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंट भरोसा भी होगा कि मुझ में, मैं ये चीज लेके आया, ये इस लायक है, इस हद तक कुछ दिशा में बढ़ रही है, और वो उस चीज को समझेगा आसानी से। लेकिन हमने आईपीआर से ही शुरुआत कर दी, तो उसको बहुत बड़ा शब्द लेके वो उस साइड में शायद वो सोचना ही बंद कर दे। Thank you so much, sir. Sir, there is one more question that what about the research scholar? As a research scholar, when we talk about the IPR, mainly we focus on the UGC के listed journals and all, है ना? तो sir, what kind of awareness we should have according to this IPR? फर्स्ट ऑफ ऑल, On the level of research. यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल का पेटेंट आईपीआर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है ना? और एक और चीज है, अगर आपने पब्लिकेशन करा दी तो पेटेंट में जा नहीं सकते आप। कोई भी चीज अगर आप पब्लिकेशन में ले आए तो आप पेटेंट में, उसके लिए क्या करना है, आपको प्री पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसको मैं प्रोविजनल पेटेंट की बात कर रहा हूँ। और प्री पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आगे बढ़िए, तब तक कम से कम आपका आइडिया एक जगह तो है। लेकिन अगर आपने कभी पब्लिकेशन करा, तो दूसरे जो केयर लिस्टिंग की बात होती है, जी सर, केयर लिस्टिंग, एक कंफ्यूजन हमारा ये है कि केयर लिस्ट आज बनी है, हमारे बहुत से साथी 2012 में आई, 2016 में आई यूज लिस्ट, इस पर सवाल उठा। देखिए, केयर ने कुछ काम नहीं किया। केयर ने एक छोटा, एक ठीक है, हमारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के जर्नल्स हैं जो हिंदी में छपते हैं, संस्कृत में, केयर में बहुत मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंडेक्स रेंज में नहीं थे। तो केयर ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने क्वालिटी देखी और उसमें करीब 1000-2000 जर्नल ऐड किए हैं टाइप 1 में, और ये फ्लक्चुएटिंग लिस्ट है, चेंज होती रहती है। दूसरी साइड में उन्होंने क्या किया कि दुनिया की जो रिनाउंड इंडेक्सिंग एजेंसी थी, जो आसनी 100 साल पुराने से कर रही हैं, स्कोपस है, वूज है, और भी कुछ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की हैं, उनको ग्रुप 2 बना दिया, टाइप 2 बना दिया। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि टाइप 1 फर्स्ट क्लास के, टाइप 2 सेकंड क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में वो इंडेक्सिंग एजेंसी जो दुनिया में पहले से काम कर रही थी, उनको डायरेक्ट इसकी साइट में लिंक कर दिया, तो उनके जो भी जर्नल है ऑटोमेटिक केयर लिस्टेड हो गए, है ना? जितने भी जर्नल क्या पब्लिश हो रहे हैं उनकी लिस्ट, सिर्फ लिंक है, आप यहाँ डालेंगे वहां से खुल जाएगा। जब केयर लिस्ट क्लिक करेंगे तो वहां दिख जाती है, वहां क्लिक करते हैं इंडेक्सिंग एजेंसी, आपको मिल जाता है। और वो जर्नल 100, 2 साल पुराने जर्नल है, आज के नहीं है। तो केयर ने सिर्फ एग्जिस्टिंग जर्नल को एक ग्रुप चलाने का काम किया है, कोई नया काम नहीं किया है, सिर्फ कुछ इंडियन जर्नल के लिए ऐड किया है, ठीक है? और अगर आप वाकई आपको लगता है कि आईपीआर वाली चीज हो, उसको सबसे पहले जाइए प्री पेटेंट, आंख मूंद के प्री पेटेंट करा दीजिए। पब्लिकेशन कतई मत कराइए, और फिर उसको आपको 1 साल का जो ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसको या तो कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, पब्लिकेशन करा लीजिए आपको, लेकिन आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसमें आप उसको डिफरेंट डायरेक्शन उसके आपका वो पेटेंट हो जाएगा। और रिसर्च स्टूडेंट को एक रिसर्च में हमारा टारगेट 2 पब्लिकेशन हो जाए, पीएचडी जमा हो जाएगी। उनको थोड़ा सा वही मोटिवेट करना है, इसलिए नहीं, जैसे ही आप उनसे पेटेंट कहेंगे पीछे भागने लगेंगे कि पेटेंट तो होने से राजी। उनको इस ढंग से मोटिवेट करना है कि भाई आप कुछ ऐसा काम करिए जो थोड़ा सा लगा, तो आपको लग रहा है क्या जो आपने किया और नहीं किया, कहीं यूट्यूब पे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और अगर ऐसा बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए सुपरवाइजर आपको लगता है कुछ उसकी 2 लाइन 10 लाइनें हैं जो आइडिया जो कहीं नहीं दिख रही है हमें, तो आप प्री पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्लीज रिसर्च स्कॉलर का जरूर फाइल कर दीजिए। यूजी के बच्चे तो कई बार यूट्यूब से उठा के ला सकते हैं, लेकिन उसको वो सर्च आप लोग अपने स्तर पर कर लीजिए। भाई आजकल डिजिटल दुनिया है, सब कुछ सर्च हो जाता है। बाकी तो उनका काम है पेटेंट सेल का, वो चेक करेंगे, लेकिन हम प्री पेटेंट फाइल करें उससे पहले हम खुद एक बार चेक कर लें कि ऐसी कुछ मिलती जुलती चीजें तो नहीं है। और कुछ बनाया हो किसी ने कोई प्रोडक्ट, उसमें थोड़ा सा भी चेंज करके आपने दिया है तो आप मानिए आपका पेटेंट होगा। प्रोसीजर में चेंज किया हो, कुछ माइनर सा चेंज करके भी आपने लाए हैं तो पेटेंट की तरफ चला जाता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी किसी का हैंड रेज है, मुझे नाम नहीं दिख रहा है। किसी ने हाथ उठाया हुआ है, पूनम आई थिंक। Julie, I want to ask something. हाँ बोलिए। Julie. Okay. डॉक्टर राहुल, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के? हाँ मैम। सर मेरा बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है
कि कोई बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन का है, उसके मन में कोई आइडिया आता है, तो वो किसी से मिलके वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो अब उसको फंड की जरूरत है, तो क्या कोई गवर्नमेंट से उसको फंड मिल सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी हो जो उसको फंड IIC प्रोवाइड आपके करे? पास है, आपके कॉलेज में IIC है, वहां पर वो आपसे बकायदा लेते हैं, हर कॉलेज से प्रपोजल आपके यहाँ भी आपकी लॉग में दिख रहा होगा, आप फाइल कर दीजिए उसको। वो अगर प्रोटोटाइप बनाने, क्योंकि एक पेटेंट बनना उसका मार्केट देखना है, प्रोटोटाइप देखना है, उस सब के लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, IIC खुद फंडिंग कर रही है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ने या किसी बॉडी ने कोई पेटेंट कराने की लिस्ट दी है क्या, कि इसके अंदर ही पेटेंट होगा, ये चीज इसके अंडर में नहीं, आएगी? अगर लिस्टिंग कर दी तो फिर आपने आइडिया को ब्लॉक कर दिया। हाँ, ओके सर। पेटेंट कराने से पहले वो जरूर चेक करें जो आपने दिया है वो कहीं और ने तो नहीं कहा, वो अलग डिफरेंट है, वो उनका काम है, जो पेटेंटिंग एजेंसीज हैं कि जो आप देने जा रहे हैं उसको प्री पेटेंट फाइल कर रहे हैं, क्या ऐसा काम है जिसने अगर कर दिया तो आपका पेटेंट नहीं होगा, नहीं सी बात है। लेकिन आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। हाँ, कुछ एरियाज जो प्रोन है जिनमें गवर्नमेंट चाहती है रिसर्च हो, इनोवेशन ज्यादा हो, इंडिया लीड करे, वो प्रायोरिटीज एरियाज हैं, केवल प्रायोरिटी है, बाउंडिंग नहीं है वो। यानी गवर्नमेंट चाहती है डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बने, तो डिफेंस में हमारे ज्यादा रिसर्च हो, तो उनमें नेचुरली फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन ये नहीं है कि डिफेंस में ही रिसर्च करनी है, प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट उनमें रिसर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो यही 2 क्वेश्चन थे, तो मैं अब मैम से बोलूंगा, पूनम मैम से, कि वो आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। और या किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वो पूछ सकता है अभी भी। मुझे नहीं लग रहा मैम किसी का है, तो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, डॉक्टर पूनम मैम। थैंक यू डॉक्टर राहुल। एनीवन एल्स, कोई भी पार्टिसिपेंट कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी की कोई क्वेरी हो? गुड आफ्टरनून मैम। यस बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एज अ पीजी स्टूडेंट आईपीआर के लिए डिसर्टेशन को कैसे यूज करें? देखिए, डेजर्टेशन को आईपीआर के लिए नहीं आप यूज कर सकते, बल्कि उसके जो आइडिया है ना, और डेजर्टेशन जब तक आपका जाएगा, अगर डेजर्टेशन यूनिवर्सिटी फाइल हो गया तो आईपीआर की पहली शर्त क्या होती है कि आप जो भी लेके जा रहे हैं वो पब्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपने कोई डेजर्टेशन बनाया और यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दिया, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, अब उसके लिए आईपीआर पे नहीं जा सकते, है ना। तो अगर आपको जाना है उसके किसी खास पार्ट पे, किसी चीज पे जो आपको लग रहा है अलग, दूसरों से अलग हटके है ना, तो फिर आप प्री पेटेंट में बात कर रहा हूं, प्री पेटेंट फाइल कर दिए, देन उसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में ले आएगी, फिर इशू नहीं बनेगा। प्री पेटेंट फाइल कर दिया आपने बता दिया, देन आपने डेजिग्नेशन अवार्ड कराई है अपनी, लेकिन आपने डेजिग्नेशन अवार्ड कराने डाल दी फिर जा रहे हैं तो नहीं एक्सेप्ट होगा वो। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? पार्टिसिपेंट्स? आई थिंक सर आप। हेलो सर, नमस्कार सर। सर मैं शिवानी। हाँ सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूशन एज एन ऑनरेबल गेस्ट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर जनरली बच्चे पूछते हैं, ज्यादातर आपके मुंह से ज्यादा वो समझ पाएंगे कि कॉपीराइट और पेटेंट में कुछ अंतर है क्या सर? मैम बिल्कुल, कॉपीराइट की एक लिमिटेशंस होती हैं, है ना। कॉपीराइट आपके डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिकली किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं होता कॉपीराइट लोगों के लिए करा लिया, है ना। कॉपीराइट आपने कुछ पब्लिकेशन या उसका करा लिया, और ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, आईपीआर जो होती हैं, उनका मोटिव अलग है। एकेडमिक है कॉपीराइट? हाँ, एकेडमिक कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं। ठीक, थैंक यू। जैसे किसी ने लोगो बनाया, उसका कॉपीराइट करा लिया, किसी कंपनी का, किसी चीज का, तो वो उसका अपना कॉपीराइट है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Anyone else? Participants, please ask your questions. सर वैसे हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सर यूजी रिसर्च को अलाउ कर दिया गया है। अच्छा। हाँ जी सर, और उन्होंने फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में कर दिया है? सर ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर में दिया है। तो यहाँ पर भी उसी के कितने क्रेडिट का अकॉर्डिंग दिया है?
क्या सर, सॉरी सर? कितने क्रेडिट का दिया है? सर क्रेडिट आई थिंक 4 क्रेडिट का है आई थिंक सर. तो 4 क्रेडिट या सर, आई एम नॉट दोनों श्योर सेमेस्टर सर, मिला के? बट सर आई थिंक 4 क्रेडिट का है एग्जैक्टली. अभी एनईपी थर्ड ईयर में आई नहीं है तो इसलिए आई सारे नहीं है। क्रेडिट एकदम याद बट नहीं है. देखिए मैं कहता हूँ, एक तो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर सिस्टम है, यस सर. जिन्होंने कहा कि थर्ड ईयर में आपको, जैसे हम नॉवल की बात करें, थर्ड ईयर में जाकर रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च करनी है, यस सर. लेकिन मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर से माइंडसेट डेवलप करें. बिल्कुल हम सर. माइंडसेट में कर रहे हैं तो नंबर कहाँ देंगे हम? बात सवाल ये आता है कि बच्चे को जब तक मार्क नहीं जोड़ेंगे बच्चा नहीं करेगा. तो बिल्कुल उसके लिए क्या है, जो हमारे पे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, सर, ये बहुत अच्छा उसके लिए सजेशन है आप आपका. बिल्कुल बहुत अच्छा जितना सजेशन. उससे हटेंगे लिखवाने से, कॉपी किताब के लिए उसका एग्जाम है यूनिवर्सिटी एग्जाम, राइट आप सर. डाइवर्सिटी में भेज दीजिए उसको, अपने तरह से बना लीजिए, ट्रिप करके आओ. अगर आप पेरेंट्स के संग भी गए हो कोई शहर घूमने, उस पर एक पेज लिख के दीजिए. क्यों? उसका माइंडसेट चेंज कराना है. आप एक पेज लिखने के लिए उन्हीं चीजों को जो रूटीन घूम रहा था वो उस पर कुछ ना कुछ लिखेगा. मान ली मॉल रोड है सपोज शिमला का, अभी ऐसे ही घूमने गया, मैंने कहा अच्छा आप अच्छा बच्चे वहां जा गए हो, आप लिखो मॉल रोड पर जो रिज है उसके बारे में आप आधा पेज लिख के लाओगे. अब वो रिज के बारे में देखेगा, अभी क्यों बनी थी रिज, होती क्या है, आधा पेज लिखा. उसका दिमाग, क्योंकि हमारा काम है माइंडसेट को डेवलप करना, तो माइंडसेट चेंज हो जाएगा. उसके लिए हमारे पास जो नंबर है इंटरनल माइंड के, उस नंबरों को हम टेस्ट से, जो रूटीन प्रैक्टिस है यूनिवर्सिटी एग्जाम, उससे अलग हटा के उसको मार्किंग करें, तो बच्चों का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा. बिल्कुल सर, दैट्स वेरी गुड आइडिया और बहुत ही अच्छा है सर. हम लोग इन फ्यूचर बात भी करेंगे शायद इसको एप्लीकेबल किया जाए. एंड नाउ it's time to wind up this lecture session. Before this, I would like to call Dr. Vinita Lal, convener of IIC, to formal vote of thanks. थैंक यू डॉक्टर पूनम. लेक्चर बहुत अच्छा था सर. थैंक यू. ऑन Thank बिहाफ you. ऑफ होल ऑर्गेनाइजिंग टीम and our college, I take this opportunity to propose vote of thanks. We are very thankful to our resource person, Professor D.C. Sharma ji, who shared a very remarkable knowledge about IPR, and you told how research, innovation and creativity are interrelated, and you shared a very magnificent knowledge and experience in patent and IPR. You told a very important today's word where innovation-led startup count is in every second. Very essential for all of us. Very remarkable ideas. Thank you, sir. Not for students, teachers also. Thank you, sir. We are very thankful to our principal ma'am for your kind support. Thank you, ma'am. A special thank to our NSCD family for their unflinching support and coordination, also cooperation, and heartfelt thanks to our students for active participation. I also thank to our organizing team for working hard to make their event successful. With this word, to move Dr. Poonam. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this wonderful vote of thanks. एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतने कम टाइम में हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आप तैयार हुए. और आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही सही. और हम लोग ये चाहेंगे कि फर्दर आपसे हम लोगों को आईआईसी पे बहुत सारे टिप्स मिलते रहें ताकि हम लोग इसमें आगे ग्रो कर पाएँ. ये हमारा फर्स्ट सेशन है सर, हम लोगों ने 2021 से स्टार्ट किया है आईआईसी इस कॉलेज में, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन होगा. और आपके यहाँ तो पहले से ही चल रहा है सर, तो हम लोग फर्दर इस पर आपसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है जी. एक रिक्वेस्ट और मेरी, अगर आप वाकई प्रैक्टिकली फीडबैक लेते हो, बिल्कुल सर, जैसी फीडबैक मुझसे भी जब शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर का जो फीडबैक मिलती है इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाता हूँ. श्योर सर, श्योर, आई विल शेयर विथ यू. थैंक यू सो मच. And that is all for this lecture. And dear participants, we will meet again at 1 o'clock for our next lecture. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू. स्पेशली प्रिंसिपल मैम को थैंक यू, अगर जुड़ी हुई है मैम तो. Yes, ma'am. Oh, yes, sir. आप पहुंचा दीजिए मैम तक. बिल्कुल सर. Thank you. Thank you, sir.